Okay. So example 13th. Shivya, I have not sent the score to anyone. The copy has already been checked. Tonight, I'm going to send all the marks to everyone. Okay. Okay, sir. हाँ, मैं बता देता हूँ तुम लोग के मार्क्स, क्योंकि I just need to check it also once. Yashwini 25 out of 25, Vedans Garg 25 out of 25, Shivya 25 out of 25. Very good, Shivya. Pranav 22 out of 25 है. Noyonika is 24 and a half out of 25. Nandini is 15 out of 25. Nandini क्या हो गया बेटा? एग्जाम वगैरह चल रहा था क्या? नंदिनी है नहीं. अच्छा. और नंदिनी के बाद मनन 23 out of 25. Kirti 25 out of 25. Jash 25 out of 25. Ishita 25 out of 25. Arshia 25 out of 25. This is Arshia Call. Arshia Goyal again 25 out of 25. Ananya Sharma is 24 and a half out of 25. Akshat Verma is 25 out of 25. Okay. So great, good marks. जिनके भी 24 and a half 25 आए हैं, ये सब सारे काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं. जिनके 20 से कम है उनको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना है कि क्यों आया, मतलब यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट व्हाई इट हैज बीन सो. ओके. एंड गेट बैक टू मी कि नहीं समझ में आया या कैसे है क्या है, मुझे बताना है. ठीक है. आई विल सेंड यू द कॉपीज, चेक्ड कॉपीज आफ्टर द क्लास, मतलब 8 बजे के बाद आज मैं भेज दूंगा. इज इट क्लियर एवरीवन? एवरीवन हैज नोन देयर स्कोर? Yes, sir. जिन्होंने टेस्ट दिया था सबको मिल गया मार्क्स, है ना? चलिए अब आगे शुरू करते हैं. ये वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया है. 14th question, let's start. So O is any point inside a rectangle ABCD. तो हमारे रेक्टेंगल के अंदर एक पॉइंट है ना, O, which is inside the rectangle ABCD. Prove that OB square plus OD square. We have to prove OB square means this is OB square plus of OD square, right? This OD square is equal to OA square plus of OC square. अब देखो हम लोग क्या करेंगे, लेट अस ड्रॉ अ लाइन PQ. सो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ PQ perpendicular to BC. Sorry, PQ parallel to BC, and BC is already parallel to AD because it is a rectangle, right? So when you have drawn this, this is a right angle triangle. This again is a right angle triangle. So LHS is equal to OB square plus of OD square. OB square can be written as OP square plus PB square. OP square plus PB square, right? And OD square, this OD square can be written as OQ square plus QD square. Right? Now, see, AP will be equal to QD. AP will be equal to QD and BP will be equal to QC. Right? Opposite sides of a triangle, or sorry, rectangle. So opposite sides of a rectangle are equal. So because this is 90, this is 90, and these are also 90 as they are parallel, PQ is parallel to BC. So PQBC will also be a rectangle and APQD will also be a rectangle, right? So this is one rectangle and this is another rectangle, right? Now, because this is a rectangle, opposite sides will be equal. This is equal to this and this is equal. Now, OP square plus PB square, what you do, PB को हम लोग replace कर लेते हैं QC से. तो we'll have, this is
OP स्क्वायर, PB की जगह हम लोग लिख लेंगे QC स्क्वायर, एंड OQ स्क्वायर प्लस QD की जगह लिख लेंगे AP स्क्वायर. अब see, AP and OP, this is paired together, and QC and OQ is paired together. You will get OP square plus of AP square. Take them together, and QC square and OQ square, take them together. So OP square plus AP square will be OA square plus OQ square plus QC square is OC square, which is the RHS which we had to prove. Is it clear? सर एक बार सेकंड लास्ट स्टेप समझा दो. ये वाला हाँ सर. देखो, हम लोग को अब इधर लाना है OA स्क्वायर. RHS देख रहे हैं, हमें OA स्क्वायर चाहिए. OA स्क्वायर OP और AP को मिला के, मतलब AP और OP को मिला के चाहिए. तो OP स्क्वायर इधर है और AP स्क्वायर इधर है, इन दोनों को साथ लेकर आगे. और उसी तरह इधर चाहिए OC स्क्वायर. OC स्क्वायर के लिए हमें OQ स्क्वायर और QC स्क्वायर चाहिए. तो OQ और QC को साथ में पेयर बना ले. उससे पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर आ गया. ठीक है सर. सबको आ गया समझ? Yes, sir. Now let's come to the question number 13th of exercise. Okay. उसके पहले वाले क्वेश्चंस इजी हैं. तो 13th वाला क्वेश्चन जो है, D and E are points on the side CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C. So हमारे पास एक right angled triangle है. ABC. D and E are points on CA and CB respectively of a triangle D and E are points on side CA and CB of triangle ABC right angled at C. Prove that AE square plus BD square. We have to join AE, join BD. So AE square plus BD square is AD square plus of BE square. So LHS is AE square plus BD square. देखो, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हमें प्रूफ क्या करना है? AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के बराबर. D को भी ज्वाइन कर. अब देखो, AE स्क्वायर can be written as in triangle ACE. We have AE square is equal to AC square plus CE square, first equation. उसके बाद triangle DCB, in triangle DCB by Pythagoras theorem, we have BD square is equal to DC square plus BC square. Second, we are applying Pythagoras theorem in both these right angle triangle. Now using this, we have AE square को हम लोग लिख सकते हैं AC square plus of CE square, और BD स्क्वायर को लिख सकते हैं DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. यहाँ पे भी फिर से हम लोग देखो, हमें लिखना है DE स्क्वायर. यहाँ पे क्या चाहिए? RHS में DE और AB.
डी और ए बी के लिए हमें जो साइड, डी के लिए क्या साइड चाहिए होगा, डी सी और सी, पाइथागोरस थ्योरम के लिए इन दोनों को साथ ले लेते हैं। और ए बी स्क्वायर के लिए हम लोग को चाहिए ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, तो इन दोनों को साथ लेकर आ जाते हैं। अब इनको कंबाइन कर दो, मीन्स ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इनको कंबाइन कर लेंगे, सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, इन दोनों को भी कंबाइन कर लेते हैं, है ना। सो दिस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दिस इज ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज डी स्क्वायर, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे लगाओगे इन ट्रायंगल डी सी ई, in triangle DCE we have D square is equal to DC square plus CE square और AB square in triangle ABC AB square is equal to AC square plus BC square. Is it clear? सबको आगे समझ? Have you understood? Has everyone understood this? Yes, sir. हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा तुम लोग पार्टिसिपेट करो क्लास में, ऐसे तो बिल्कुल शांत रहोगे तो कैसे, फिर तुम्हारा भी मन नहीं लगेगा, मेरा भी मन नहीं लगेगा। थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ। देखो अभी क्या है कि वी आर इन दिसंबर, वी स्टिल डोंट नो कि कब जो है हमारा बोर्ड एग्जाम होगा। सो मे बी नेक्स्ट वीक द एजुकेशन मिनिस्टर हैज सेड दैट he is discussing with the parents, students and the teachers and the schools कि when should they conduct the board exam. तो नेक्स्ट वीक तक क्लैरिटी आ जाएगी। तो मुझे जो अंदेशा है कि 1-2 महीने तो आगे जाएगा ही डेट्स वगैरह। अब जब डेट्स आगे जाएगा तो तुम अभी से लेके तब तक का तुम्हारा जो मोमेंटम है वो मेंटेन रहना चाहिए और वो इंटरेस्ट मेंटेन रहना चाहिए। अगर इंटरेस्ट लेवल नीचे चला जाएगा तो फिर उसके बाद जो भी मेहनत तुमने किया 6-7 महीने में, जितना भी तुम सीखे, वो सब गायब होता चला जाएगा। So keep on doing stuff. I know it is repetitive. It is something which you have already done एक बार, 2 बार, 3 बार, बट जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक तो बार बार करना ही है ना। क्योंकि क्वेश्चंस तो यही आएंगे, है ना। नया क्वेश्चन तो कुछ बन के कुछ आएगा नहीं, और जो आएगा मतलब जो जेनेरिक क्वेश्चंस, जो स्पेसिफिक एनसीईआरटी है या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसके आसपास के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस उसी के अराउंड आते हैं। तो बार बार करो, कोई बात नहीं, याद हो गया है तुमको, आंसर तक याद है, तुम स्टेप्स को बार बार लिखो, क्योंकि तुमको रिटेन करना है। कब तक? तुमको जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो जाता तब तक रिटेन करना है। अगर तुम करना छोड़ दोगे, जितना भी तुम पढ़े हो, तो 1-2 महीने में यू विल फॉरगेट एवरीथिंग, कुछ भी याद नहीं रहेगा। बहुत मतलब नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है बेसिकली। जैसे ही आप किसी चीज का प्रैक्टिस बंद करते हैं, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग विद इन 5-10 days, राइट। तो don't get into that mode, don't be relaxed or anything, keep on working hard, and जहां जहां पे जरूरत होगी तुमको वहां पे स्टेप अप भी करना पड़ेगा। अभी कम से कम जो है नंबर ऑफ आवर्स, जैसे हम लोग बताए थे कि भाई अब जो टाइम है वो 5-6 आवर्स, कम से कम तुमको 5 to 6 आवर्स सेल्फ स्टडी करना चाहिए। कीप ऑन डूइंग दैट। आया समझ में बालकों? Yes, sir. Yes, sir. So let's move to the next one.
So I'll never stop revising NCERT. Why? Because जब भी आगे भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, NCERT के क्वेश्चंस करते रहेंगे. NCERT के क्वेश्चंस, क्योंकि जो खासकर जो चैप्टर जो डिफिकल्ट चैप्टर्स वहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस NCERT बेस्ड ही होती हैं. जो इजी चैप्टर्स हैं वहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड है, तो वहाँ पे बाहर से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट वो फॉर्मूला बेस्ड रहता है तो कोई फर्क नहीं रहता है. बट ये ज्योमेट्री वाले जितने क्वेश्चंस हैं, you will find most of the questions which is similar to NCERT or same as NCERT. ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हर एग्जाम में अगर अलग क्वेश्चन आता रहता तो अब तक तो क्वेश्चन ही खत्म हो चुका होता जितने बारी एग्जाम हो चुका है ना? तो इसीलिए क्वेश्चन will get repeated and it will be always like that. So important questions are important whether it is for you or whether it was for me during my time. So things have not changed much. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 14th क्वेश्चन हम लोग को करना है एक्सरसाइज का ही. द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC. तो हम लोग पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम साइड A ऑन साइड BC. From point A on side BC of triangle ABC intersect BC at D, है ना? ये आके D पे मीट करता है. Such that DB is equal to thrice of CD. ये given है. DB is equal to thrice of CD. तो given में हमें क्या क्या दे रखा है कि AD is perpendicular to BC and DB is equal to thrice of CD. दो चीज दे रखा है. Prove that twice of AB square is equal to twice of AC square plus BC square. ये हमें प्रूव करना है. अब देखो हम लोग पहले जो LHS है वहां से स्टार्ट करते हैं अगर, है ना, और उसको AC और BC के टर्म्स में लेके आएंगे. तो LHS is equal to twice of AB square. So twice of AB square, that means twice of AB square को हम लोग लिख सकते हैं AD स्क्वायर प्लस ऑफ BD स्क्वायर. ठीक है. अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADB. AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो इसको ओपन कर लो. ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BD स्क्वायर. ठीक है. अब देखो BD क्या है, थ्राइस ऑफ CD है, राइट. और AD स्क्वायर को हम लोग, हमें तो AC भी चाहिए ना यहाँ पे, तो AD स्क्वायर को इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ACD में, दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर को हम लोग AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर लिख सकते हैं. फिर से अगर इन ट्राइंगल ACD, है ना, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे ट्राइंगल ACD में, तो हमारा AC स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर होगा. तो AD स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BD स्क्वायर तो है ही. इसको हम लोग करेंगे तो ये 2AC स्क्वायर माइनस 2CD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर. अब देखो CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज DB इज थ्राइस ऑफ CD. तो मतलब ये 3/4 ऑफ BC हो गया और CD जो है 1/4 ऑफ BC हो गया. भाई DB प्लस CD इज इक्वल टू BC और DB क्या है, थ्राइस ऑफ CD है. Thrice CD plus CD is BC. 4 times CD is equal to BC. तो CD is equal to BC by 4. अब ये BC by 4 हो गया तो BD क्या है, BC minus CD. BD is equal to thrice of CD या 3BC by 4 हो गया. तो भाई ये 3BC by 4 और ये BC by 4 हम लोग अप्लाई कर देते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आंसर में क्या है, BC है. तो CD और BD दोनों को BC के टर्म्स में लिख लेंगे जो हम लोगों ने निकाला ऊपर.
यहाँ पे हम लोग ने CD और BD को BC के टर्म्स में निकाला है. So AC twice of AC square minus twice CD square. So twice of CD को हम लोग लिख सकते हैं BC/4 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BD को हम लोग लिख सकते हैं 3BC/4 होल स्क्वायर. So which is 2AC square plus 2BC square upon 16 plus, sorry माइनस है यहाँ पे, प्लस 9 2s 18BC square upon 16. So this is 2AC square plus 16BC square upon 16. 16 और 16 कट गया. So this is twice of AC square plus of BC square. सर वो 2AC स्क्वायर प्लस वहां होना चाहिए और माइनस यहाँ शायद होना चाहिए. कहाँ पे अंकल? नहीं, सेकंड लास्ट. यहाँ. हाँ, वहाँ अगर प्लस नहीं होगा तो वहाँ माइनस. अरे यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखा, ये प्लस है तो यहाँ प्लस लिखा. 9 2s 18 किया. नहीं तो फिर लास्ट स्टेप में वो प्लस कैसे हो गया? अरे 18 - 2 + 16 नहीं होगा घोचू? हाँ भाई, +18 - 2 क्या होता है? पता नहीं, मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ क्या? अरे 2AC स्क्वायर माइनस हाँ 2BC स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 18BC स्क्वायर बाय 16 प्लस 18 - 2 इज +16. हाँ तो 2AC हाँ स्क्वायर प्लस 16BC स्क्वायर बाय 16 नहीं. सही बात है. ठीक है सॉरी सर. नहीं नहीं, तुम गलती बता सकते हो बट यहाँ गलत थे नहीं हम. हो गया, लिख लिया, सबको समझ में आ गया ये? Yes, sir. यस सर. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 14th वाले के बाद. फिफ्टींथ क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बारी आ चुका है एग्जाम में, तुम्हारे टेस्ट वेस्ट में भी आया होगा आई एम श्योर, अगर ट्रायंगल्स का एग्जाम हुआ होगा तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, हर टीचर्स को अच्छा लगता है. इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट, हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, पहले तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं. So in this equilateral triangle ABC, D is a point on the side BC such that BD is 1/3 of BC. So D हो गया and इधर, so BD is 1/3 of BC, right? ये दे रखा है. And D is a point on the side BC such that BD is 1/3 of BC. Prove that 9AD square is 7AB square. अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं. ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर होगा ना, ये BC को एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे कट करेगा. E है, सो BE क्या हो जाएगा? सो इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, in an equilateral triangle, the median and altitude coincide with each other, है ना? They are one and the same line. So they coincide with each other. So that means B is equal to C. ठीक है, B is equal to C, which is equal to
BC upon 2, राइट। अब हमें 9AD स्क्वायर करना है, LHS से चलते हैं। LHS states 9AD स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू AD को 9 टाइम्स, AD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया ट्राइंगल ADE में। पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ADE। अच्छा, एक और चीज है, DE will be equal to BE minus BD। So BE हमारा है BC by 2 minus BD is BC by 3। LCM ले लिया 6, 3BC minus 2BC, so this is BC upon 6। तो ये जो DE है, this is BC by 6। अब हम लोग यूज करते हैं इसको, हम लोग को AB स्क्वायर के टर्म्स में लिखना है। AE स्क्वायर को हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 टाइम्स AE स्क्वायर प्लस DE को हम लोग लिख सकते हैं BC बाय 6, ठीक है, BC बाय 6 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 9 टाइम्स AE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय 36। सो दिस इज 36 को बाहर अगर करोगे 9 बाय 36 अंदर आ जाएगा 36 AE स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर, 9 बाय 36 ये 4 हो गया। सो दिस इज इसको अंदर लेके चले जाएंगे, सो वील हैव 36 AE स्क्वायर बाय 4 प्लस BC स्क्वायर बाय 4, ठीक है। 9 टाइम्स AE स्क्वायर नाइन AD square is AE square plus DE square, AE square plus BC by 6, yes, BC square by 36, 36 AE square plus BC square. So 9 times AE square by BC by 2. नाइन टाइम्स BC by 2, इतना फिर क्यों किया हम लोगों ने, एनीवेज। अब हम लोग ये AB 7AB स्क्वायर हम लोग को निकालना है। AB स्क्वायर हम लोग को कैसे मिलेगा, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर करके मिलेगा, राइट। सो सी AB स्क्वायर 7AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर RHS को थोड़ा हम लोग सॉल्व करें तो 7 टाइम्स वी हैव AE स्क्वायर प्लस ऑफ BE स्क्वायर। So 7 times AE square plus 7BE. 7BE means BC by 2. So this is 7 times AE square plus 7 BC square by 4. Okay. BD is BC by 3 BD. B minus BD. 3BC minus 2BC by 6.
BC by 6. ठीक है, इसको अगर हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं, 36 ए स्क्वायर बाय 4, ये 9 ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी स्क्वायर बाय 4 हुआ। अब इसमें हम लोग 7 ए स्क्वायर अलग रखते हैं और बाकी 2 ए स्क्वायर को हम लोग अलग कर लेंगे और ये बी सी स्क्वायर बाय 4 अलग रखते हैं। Now what we can do is AE square can be written as, this AE square can be written as AB square minus BE square. So 7AE square plus twice of AE को हम लोग लिख सकते हैं AB square minus of, एक मिनट दोबारा कर लेता हूँ इसको ना, I have just so we have this triangle ABC. D is a point on the side BC, so we had BD is equal to BC by 3, and let's say this is point E, which is right angled. So 9AD square, this is your LHS. 9AD square can be written as 9 times AE square plus 9 times DE square. This is AE square को हम लोग अब लिख सकते हैं AB square minus BE square. ठीक है, 9 times DE square is BC by 6 का होल स्क्वायर है ना। DE हम लोगों ने BC by 6 निकाल रखा था। DE is equal to BE minus BD. BE is BC by 2 minus BC by 3. So which is LCM 6, 3 BC minus 2 BC, that is BC by 6. So this can be written as 9 times AB square minus BE square. So this is 9 times BE को हम लोग लिख सकते हैं BC by 2 का whole square plus 9 times BC square by 36. So this is 9 times AB square, 9 times BC square by 4 plus 9 times BC square by 36. ठीक है, so this is 4 times हो गया. So this is 9 times AB square minus of minus 9 plus 1 is minus 8 BC square. 8 BC square upon 4. So this is 9 AB square minus 2 BC square. अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, AB BC इक्वल होगा, AB is equal to BC is equal to AC because it is an equilateral triangle. So we'll write 9AB square minus 2AB square, that is 7AB square. क्लियर? सर वहाँ पे सर 10 BC स्क्वायर नहीं होना चाहिए सर? कहाँ पे बेटा? सर 9 BC स्क्वायर प्लस 1 BC स्क्वायर माइनस 9 प्लस, अच्छा ठीक है ओके तो -8 होगा. हाँ ठीक है सर.
क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Now the last one, in an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. So we have an equilateral triangle. Okay. Equilateral triangle ABC. Prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. So 3 times AB square is equal to 4 times AD square. This is what we have to prove. Right? So यहाँ पे देखिए LHS अगर हम लोग लेते हैं 3 times AB square, इसको क्या लिखेंगे? 3 times AB square को हम लोग लिख सकते हैं AD square minus BD square. ठीक है. सो इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो D मिड पॉइंट होगा BC का, राइट? इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टाइम्स AD स्क्वायर माइनस BD को हम लोग लिख सकते हैं BC बाई 2. ठीक है. सो AD स्क्वायर माइनस BD को हम लोग लिख सकते हैं BC बाई 2, या इससे अच्छा RHS को लेके करेंगे तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा. खैर एनीवेज, थ्राइस ऑफ AD स्क्वायर माइनस BC बाई 2 का होल स्क्वायर. So this is 3 times AD square minus 3BC square by 4. Right. अब ये BC is same as D. या इसमें ना RHS लेके करते हैं, it will be more easier for us. 4 times AD square is 4 times AD को हम लोग लिख सकते हैं AB square minus of BD square, और 4 times AB square minus of BD को लिख सकते हैं BC by 2 का होल स्क्वायर, और 4AB स्क्वायर माइनस 4BC स्क्वायर by 4. Now which is 4AB square minus of BC square. So AB is equal to BC, so 4AB square minus of AB square thrice of AB square, which is equal to LHS. So this is more easier for you to do. यहाँ पे लिख लेना, since AB is equal to BC is equal to AC, equilateral triangle है तो. Is it clear? Yes, sir. Done, sir. Or do you have any doubt, anyone? Anyone having any doubt? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे से. So after triangles, as you guys said कि you want to do circles, so I'll be doing circles after this. So once we are done with the geometry part, then we can start revising from the first chapter. ठीक है.
असाइनमेंट 5 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 to 12. This is based on Pythagoras theorem only. So assignment 5 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 to 12. You can do it. No doubts? चलो then I will only ask questions. ठीक है ना? तुम्हारे ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन 7 है ऑप्शनल एक्सरसाइज में. So in figure 6.61, two chords AB and CD intersect. So intersect each other at point P. So we have a circle here, and then we have two chords. AB and CD. This is point P. So in figure 6.61, two chords AB and CD intersect each other at point P. Prove that triangle APC, इसको complete कर देते हैं, ठीक है. Prove that triangle APC is similar to triangle DPB and AP into PB is equal to CP into DP. So हमें prove करना है. To prove triangle APC is similar to triangle DPB. Second part, you have to prove AP into PB is equal to CP into DP. अब देखो समझो, हमें पता है कि एक आर्क कहीं पे भी जो एंगल सबटेंड करता है सर्कल में, है ना, तो एंगल्स in the alternate segment are equal. So this angle will be equal to this angle, right? Similarly, this angle is equal to this angle because arc AD will subtend equal angle at C as well as B. यहाँ पे arc BC subtended equal angles at A and D, and arc AD subtends equal angle at C and B. Is it clear to everyone? Yes, sir. Angle CAD. So in triangle APC and triangle DPB, we have angle CAP is equal to angle BDC, BDP, right? And apart from this, angle PCA is equal to angle PBD. Angles in the same segment are equal. है ना, 9th क्लास में तुम लोग ये थ्योरम पढ़े थे. So by AA similarity theorem, we have triangle APC similar to triangle DPB. जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया, इससे हमें आ जाएगा AP by DP is equal to CP by BP. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. This is AP into BP is equal to CP into DP. ठीक है. So AP into BP is equal to CP into DP. ठीक है. This is what you had to prove. क्लियर है बच्चों?
जस्ट a second. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. There is this another question, 8th question. So you have a circle. So this is P, A, C, B and D. So two chords AB and CD of a circle intersect each other at point P when produced outside the circle. We have to prove triangle PAC similar to triangle PDB, and second part PA into PB is equal to PC into PD. ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है? अब देखो, अब पिछली क्लास में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एंगल A प्लस D 180 डिग्री होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, और एंगल A प्लस PAC ये दोनों एंगल भी 180 डिग्री है. तो इससे क्या आ जाएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. एनीवेज एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के बराबर होता है. सिमिलरली ये जो एंगल है, राइट, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. सेम मेथड. मैं फिर से बता रहा हूं. सी इफ आई राइट, so ABCD is a cyclic quadrilateral. So ये cyclic quadrilateral है, तो एंगल CAB plus angle CDB is equal to 180 degree. Sum of opposite angles in a cyclic quadrilateral is 180 degree. So angle CAB is 180 minus angle CDB, first equation. उसके अलावा एंगल CAB प्लस एंगल PAC is equal to 180 degree. लीनियर पेयर यहाँ पे लिख लीजिएगा, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. तो इससे आ जाएगा एंगल CAB is 180 minus PAC, सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन कर दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. यहाँ भी CAB है, यहाँ भी CAB है, मतलब 180 minus CDB is 180 minus PAC. 180 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो CDB is equal to PAC. ठीक है. सिमिलरली we have CDB के जगह अब ये ABD is equal to एंगल PCA. ठीक है. तो बाय AA सिमिलैरिटी, अब AA सिमिलैरिटी से ट्राइंगल PAC will be similar to triangle PDB, है ना. A के करस्पॉन्डिंग D हो गया, C के करस्पॉन्डिंग B हो गया. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. चलो विल स्टॉप हियर, है ना. और तुम लोग ये इस वाले का ना एक्सरसाइज 6.6 भी अटेम्प्ट कर लेना, ऑप्शनल वाला भी.
आई एम श्योर तुम लोग किए हुए होगे, अगर नहीं किए हो तो एक बार अटेम्प्ट कर लेना, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा ऑप्शनल से भी वो भी पूछ लेना मेरे से, ठीक है? Okay, sir. चलिए, बाय एंड टेक केयर एवरीवन, वी आर डन फॉर टुडे। Thank you, sir. या